Hello student, we are providing Centennial online classes as we are working from home. Today I will discuss class 12 chemistry chapter 8 D and F block elements, and today topic is oxidizing properties of KMnO4 in alkaline or neutral medium. In last video we have already discussed oxidizing properties of KMnO4 in acidic medium, and today I will discuss here oxidizing properties of KMnO4 in neutral medium. Let us start. Now you see here KMnO4 dissociate in aqueous solution and it form K plus MnO4 minus, means this is called the permanganate ions. These permanganate ions give MnO2 in acidic or neutral medium. Means it reduces itself and it forms the MnO2. Now you have to balance this equation, and already you know how to balance the redox reaction in बेसिक मीडियम. जैसा कि तुम जानते हो कि बेसिक मीडियम में MnO4 माइनस को कैसे हम बैलेंस करेंगे. तो आपको रूल क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन 4 एटम्स है और इधर ऑक्सीजन कितना है 2 एटम्स है. तो आपको क्या करना है, जितना ऑक्सीजन डिफरेंस है उसका डबल OH आंस लगा देना. मीन्स यू हैव टू प्लेस हियर द 4 OH minus this side, and this side means opposite of OH minus you have to place the half of the water molecules. Half of this OH minus means water molecules you have to place here. How many? 2 molecules, because here is the 4 OH, तो इसका half करेंगे तो 2 H2O molecules. And now you have to balance the charge. Now you see in left hand side 1 negative charge, right hand side 4 negative charge, so you have to place here the 3 electrons. Now this equation is balance. So this is called the ionic equation of KMnO4 or permanganate ions in basic medium. Now next one I will take here examples. If MnO4 minus react with iodide ions, means this MnO4 when react with I minus, what will happen. तो आप ये जानते हो क्या होगा कि MnO4 माइनस जब I माइनस से रिएक्ट करेगा बेसिक मीडियम में, तो क्या होगा कि MnO4 जो माइनस है ये खुद अपने आप को रिड्यूस कर देगा MnO2 में, और क्या होगा I माइनस will oxidize here into IO3 minus. This is called the iodide ions in basic medium. Now you have to balance this equation. So again you have to split this equation, oxidation reaction and reduction reaction. जैसा कि तुम पहले से ही जानते हो, तो हम क्या करेंगे कि I माइनस, देखो I माइनस क्या हो रहा है यहाँ पर, ये आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये दे रहा है IO3 माइनस. अब इसको बैलेंस करो. बैलेंस कैसे होगा, तो ऑक्सीजन कितना है 3 एटम्स इधर है, इधर ऑक्सीजन 0 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका डबल OH आंस लगाना पड़ेगा, मीन्स 6 OH माइनस, और इसके अपोजिट साइड क्या करना है 3 H2O आपको प्लेस करना पड़ेगा. अब आप देखो चार्ज बैलेंस करना है. हाउ मेनी नेगेटिव चार्जेस हियर 6 and 1 7, and how many here is 1, तो डिफरेंस इज what 6. So you have to place here the 6 electrons. उसके बाद क्या करना पड़ता है, अब हमको MnO4 माइनस का, तो MnO4 माइनस हम जानते हैं कि बेसिक मीडियम में वो क्या रिएक्शन देता है, तो इसी रिएक्शन को हमको यहाँ पर नोट करना है. तो क्या होगा MnO4 माइनस प्लस 2 H2O react plus electrons, and it will give here the MnO2 plus 4 OH minus. अब क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना पड़ेगा. तो इस इधर क्या है 3 इलेक्ट्रॉन्स and this one is the 6 electron.
So this whole equation will multiply by 2 and this 6 electrons and 6 electron will cancel out. इसके बाद हम ऐड कर देंगे और नेट रिएक्शन हमको मिल जाएगा. नाउ यू सी दिस इज द I माइनस आयोडाइड आयंस प्लस 6 OH माइनस प्लस 2 MnO4 माइनस 2. क्यों? क्योंकि 2 से हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है. प्लस 4 H2O क्योंकि 2 जा 4 H2O. अब आप राइट हैंड साइड के प्रोडक्ट को लिखोगे तो क्या हो जाएगा IO3 माइनस प्लस 3H2O दिस 3H2O देन 2 MnO2 प्लस 8 OH माइनस. अब आप क्या कर सकते हो, इस OH माइनस और इस OH माइनस को कैंसिल कर दोगे तो इधर कितना है 6 OH, इधर 8 OH मीन्स 2 OH माइनस. इधर कितना है 3H2O, इधर 4. कितना हो जाएगा 1 H2O. अब जाके आप इसका नेट रिएक्शन लिख दोगे आप. सो दिस रिएक्शन विल बी हियर द I माइनस प्लस 2 MnO4 माइनस प्लस H2O. It will give here the what IO3 minus plus 2 MnO2 plus 2 OH minus. ये आपको क्या मिल जाएगा नेट आयनिक इक्वेशन मिल जाएगा आपको. अब आप देखो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं. जब MnO, ये फर्स्ट एग्जांपल था आपका. सेकेंड एग्जांपल सॉरी दिस वन इज द फर्स्ट एग्जांपल हियर एंड नाउ वी हैव टू टेक हियर द second example. Means when MnO4 minus react with thiosulfate SO3 2 minus sulfate ions in basic medium. जैसा कि तुम जानते हो कि MnO4 माइनस बेसिक मीडियम में क्या देता है तो MnO2 देगा और क्या होगा ये जो थायोसल्फेट आयंस है किस में चेंज हो जाएगा तो SO4 2 माइनस में. SO4 2 माइनस. अब फिर से इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा तो आप देखो इसको क्या करेंगे. इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप ये जानते हो कि H2O3 2 माइनस H2O3 2 माइनस विल गिव हियर द SO4 2 माइनस. तो हम क्या करेंगे पहले सल्फर को बैलेंस करेंगे. हाउ मेनी सल्फर इज हियर 2 एटम्स एंड हियर द 1. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई हियर 2. नाउ यू हैव टू बैलेंस द ऑक्सीजन. हाउ मेनी ऑक्सीजन इज हियर 3 एंड हियर 4 2 जा 8. तो डिफरेंस कितना का आ गया 5 का बिकॉज 3 इज हियर एंड हियर 8 मीन्स डिफरेंस इज हाउ मेनी 5. तो इसमें रूल क्या है बेसिक मीडियम में कि जितना डिफरेंस होता है ऑक्सीजन का उसका डबल OH आयंस लगा देते हैं हम. तो कितना हो जाएगा 10 OH माइनस एंड इसका हम क्या करते हैं हाफ H2O इधर लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा 5 H2O. अब तुमको चार्ज बैलेंस करना है. नाउ वी हैव टू बैलेंस द चार्ज. नाउ यू सी टोटल नेगेटिव चार्ज इज 12 हियर एंड टोटल नेगेटिव चार्ज राइट हैंड साइड हाउ मेनी 2 2 जा 4 means 4 negative charge and here 12 negative charge. So difference is 8 negative charge. किधर कम है इधर है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स लगा देंगे. अब आप देखो MnO4 का क्योंकि बेसिक मीडियम में सेम रिएक्शन देगा तो इसी रिएक्शन को हम यहाँ फिर से रिपीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा MnO4 माइनस प्लस 2H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव हियर द what MnO2 प्लस 4 OH माइनस. अब देखो क्या करना है फिर से आप यहाँ देखो इधर 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड हियर द 8 इलेक्ट्रॉन्स. सो व्हाट यू विल डू you have to multiply by 3 and this equation will multiply by 8. अब आपको इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल कर देना है और जो राइट हैंड साइड रिएक्टेंट है उसको ऐड कर देना है और फिर लेफ्ट हैंड साइड जो रिएक्टेंट है उसको ऐड कर देना है. फिर राइट हैंड साइड के रिएक्टेंट को सबको ऐड कर देना है और फिर नेट रिएक्शन आप लिख दोगे. आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा मीन्स नेट कंप्लीट आयनिक इक्वेशन मिल जाएगा.
So this one you can write yourself. Okay, thank you.